جناب ابو بکر عمر عثمان ان لوگوں کو ماننے سے تو بہتر ہے بھائی اسلام بندہ کافر ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ماننے سے بہتر اس وجہ سے نا کیونکہ ان کو دین کے مسئلے نہیں معلوم، ان کو قرآن اوپر سے نہیں معلوم ہے۔ یہ کروڑوں معاویہ بن ابی سفیان ہونا، یہ ایک آقا خان علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ پورا ایک تسلسل ایک ہی مرتبے میں مانتے ہیں؟ بالکل کوئی اس میں فرق نہیں ہے، جس طرح امام حسین ہے اس طرح آج کے امام ہیں علیہ السلام، کوئی فرق نہیں ہے، مطلب درجات میں وہی منزلت ہے، وہی منزلت ہے، جس طرح امام حسین، تب جا کے تو وہ دین کی تشریح کر سکتے ہیں نا۔ میں بات کر رہی ہوں اس مسئلے کی، جو مسئلہ ابھی چترال میں اپر ایریا میں مسلمانوں کے دلوں کو بہت تکلیف دیتے ہوئے صابر سلیم نامی یہ مشنری، اس نے کیا کیا ہے، اس نے اپنے امام کے لیے رحمت للعالمین کا لقب استعمال کر لیا ہے۔ یہ شخص جو ہے وہ ثم نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اسماعیلیہ مسلمانوں کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، بے شک یعنی ان کے امام آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی آمد ایک عظیم معجزہ ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے امام جو ہیں ان کا آنا ایک معجزہ ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف ڈال دیا کہ یہ ابھی بھی معجزات جو انبیاء کرام کو اسپیشل ملا کرتے تھے ان کے امام کا معجزہ ہو گیا۔ اچھا، یہ شخص کہتا ہے کہ ان کا امام جو ہے وہ بے شک رحمت للعالمین ہے اور ان کی جو ابھی پاکستان میں ان کا آنا ایک معجزے سے کم نہیں۔ آگے سے کہتے ہیں کہ بے شک امام زمان امام العصر علیہ السلام ثم نعوذ باللہ، کہتا ہے بے شک امام زمان امام العصر علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں۔ ہم مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جملے خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے کہا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کسی اور نبی کے لیے، کسی اولیاء کے لیے، کسی اور اپنے پیارے کے لیے خواہ بہت سارے القاب ڈفرینٹ انبیاءوں کے لیے استعمال کیے، کسی کو روح اللہ کہا، کسی کو ید اللہ کہا، کسی کو جو ہے وہ اپنا دوست کہا، کسی کو اپنا ساتھی کہا، کسی سے محبت کا اختیار کیا، لیکن یہ جو خاص ورڈ تھا رحمت للعالمین کا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ان کو یہ کہا گیا۔ لیکن یہ شخص ادھر بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے اپنے امام کو رحمت للعالمین کا لقب دیتا ہے۔ آگے سے کہتا ہے ان کی آمد اللہ کا بہترین معجزہ ہے، ثم نعوذ باللہ، کہتا ہے امام زمانہ امام العصر علیہ السلام اللہ کی جانب سے رحمت للعالمین ہے۔ یہ شخص جان بوجھ کے اس پوسٹ میں نہیں بھی نہیں تو 3-4 دفعہ یہ جملہ بالکل قصدن بولتا ہے تاکہ مسلمانوں کو بار بار یہ وار کر سکے۔ کہتا ہے آگے لکھتا ہے کہ یعنی کہ امام کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے اور امام کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ثم نعوذ باللہ، یہ وہ الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ان کی اطاعت کرے، ان کی جو ہے وہ ہدایت کو پا کر آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ شخص جو ہے اس طرح کی پوسٹ بناتا ہے۔ اب اس پوسٹ کے بعد کیا ہوتا ہے، اس پوسٹ کے فوراً بعد جو ہے یہ شخص جب اس کے اوپر کارروائی کی جاتی ہے، مسلمانوں نے تابڑتوڑ اس پر ویڈیوز ڈالنا شروع کی، اس کو جواب دینا شروع کیے، تو اس نے جو ہے وہ اپنی ہی ایک ویڈیو میں، اور وہ ویڈیو میں دکھا بھی دوں گی تھوڑی دیر کے بعد، علی بھائی سٹیج پہ جیسے ہی آئیں گے۔ اچھا، جب صابر سلیم سے جو ہے وہ بات کی گئی اور اس کے اوپر پوسٹ لگی اور مسلمانوں نے اپنا رد عمل دکھایا، رپورٹس ہوئیں، FIRs کٹیں اور بڑا تہلکہ مچا، تو اس شخص نے جو ہے وہ بڑا ہی پھیکا سا منہ بنا کر جو جواب دیا وہ اس کی ایک ویڈیو میں موجود ہے، اور میں صرف ویڈیو پوری نہیں چلاؤں گی، لیکن اس نے کہا کہ قاضی نعمان جو کہ جن کی کتاب ہے دائم الاسلام، اس میں اندر ان کے جو یہ جو مشنری اور پھر جو بہت بڑے عالم دین، انہوں نے جو ہے وہ امام کو کہا کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ یہ جو اس نے اپنا جواب پیش کیا ہے یہ میں آپ کو ذرا دکھا دوں۔ کوئی بھی امام کی آمد کا موضوع ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں الفاظوں کو دکھا کر کے، حالانکہ وہ تمام تعلیمات ہر فرقے کی اپنی پائی جاتی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر رحمت للعالمین یہ سیدنا قاضی نعمان قدس سرہ نے فرمان فرمایا ہے، اگر آپ کی نالج میں ہو۔
अच्छा, ये इसने जो हवाला दिया है, ये ज़बानी दिया है। अब इसके बाद ये खुद इसकी पिक्चर, ये देखिए, ये मैं आप लोगों से वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ कि इसने कहा है कि काजी नुमान ने ये हमारे इमाम को या जितने भी इमाम होते हैं उन सब को जो है वो रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब दिया, और ये इसने खुद किताब पेश की है। नोट कीजिए, ये दाइमुल इस्लाम काजी अल नुमान जो है उनकी किताब, और ये उसने हवाले को खुद ही सर्कल करके पेश किया। अब आइए इस हवाले को पढ़ते हैं, और ये शायद समझ रहा है कि लोग शायद नहीं देखेंगे और लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दूं कि उस हवाले में क्या रहमतुल लिल आलमीन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ये देखिए, लिखा है कि जब आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम खुदा की ऐसी हुज्जतें हैं जिससे उनकी अपनी मखलूक पर इस्तदलाल कायम किया जाता है, और वो खुदा की रहमत के ऐसे दरवाजे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, रहमतुल लिल आलमीन हमने ढूंढना है, रहमत नहीं। रहमत पर हमारा कोई नहीं हो सकता एतराज, क्योंकि माँ बाप भी रहमत, औलाद भी रहमत, जहमत भी बन जाती है, लेकिन इसका कोई अब मना नहीं है। लेकिन वर्ड रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम जहानों के लिए रहमत, हमारा मसला उससे है। खैर, ये रेफरेंस पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि खुदा की रहमत के ऐसे दरवाजे हैं जिनको उसने अपनी मखलूक पर खोल रखे हैं, और खुदावंद ताला ने इमामुल हुदा को अपनी अतात गुजार बंदों के लिए असबाब निजात बनाया है। इनकी अतात के बगैर ना अमाल मकबूल होंगे और ना बराबर रहेगा। पता नहीं वो नीचे लाइन आ गई। अब इसमें पूरे में आपको कहीं पर भी रहमतुल लिल आलमीन वर्ड नहीं दिखेगा, तो ये जो अपना जवाब इसने पेश किया उसमें भी ये वर्ड नहीं दिखता, लेकिन ये बड़ी ढिठाई के साथ ये पूरी वीडियो बनाता है, माफ़ी नहीं मांगता और अपने इस चीज़ पर कायम रहता है। अब उसके बाद इस शख्स की ये कोई पहली गुस्ताखी नहीं है। इसकी वॉल पर अभी भी सुम्मा नाउजुबिल्लाह एक बहुत ही गुस्ताखाना, और मेरा ये पॉइंट करना इसलिए ज़रूरी है कि अभी इसके ऊपर केसेस लोग लिखवा रहे हैं, FIR करवा रहे हैं। तो ये सारी जो प्रूफ्स हैं मैं देना चाह रही हूँ कि अगर जो मुसलमान कानून का जरिया अख्तियार करते हुए इस पर कोई चाराजोई करना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकता है। ये प्रूफ देखिएगा, ये इसकी अपनी वॉल पर पोस्ट लगी हुई है। कहता है कि एक टिकटॉकर ने कहा कि सैयद करीम अल हुसैनी, यानी नोट कीजिएगा कि अपने इमाम के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ कर रहा है, सैयद करीम अल हुसैनी आगा खान अलैहिस्सलाम। ठीक, क्या कुछ बोला इसने। कहता है कि पेशाब करने के मोहताज हैं और ताना दिया। अब आगे से खुद गुस्ताखी करने लगा है। मैं पूछता हूं कि क्या, अब देखे, ना हजरत, ना सैयद, ना रजी अल्लाह, कुछ नहीं। लिखता है अबू बकर और उमर पेशाब करने के मोहताज नहीं थे, जिनसे इमाम आगा अलैहिस्सलाम अफजल हैं। सुम्मा नाउजुबिल्लाह, अपने इमाम आगा खान को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो, जिनकी कब्र मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के अंदर, उस कमरे में अंदर मौजूद है, ये शख्स उनके ऊपर ताना कस रहा है और कहता है कि मेरा इमाम इनसे अफजल है। इसके अलावा इस शख्स की एक और गुस्ताखी आपको दिखा दी, और बहुत छोटी सी वीडियो, ताकि ये लोगों के पास विद प्रूफ आ जाए कि ये कोई पहली बार इसकी गुस्ताखी नहीं है। आप जो ऊपर जो आइम्मा जा रहे हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम तक, वहाँ तक आप पूरा एक तसलसल एक ही मर्तबे में मानते हैं? बिल्कुल, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। जिस तरह इमाम हुसैन है इस तरह आज के इमाम है अलैहिस्सलाम, कोई फ़र्क नहीं है। मतलब दरजात में वही मंजिलात है, वही मंजिलात है। जिस तरह इमाम हुसैन, तब जाकर तो वो दीन की तशरीह कर सकते हैं ना। यानी एक शख्स दीन की तशरीह, यानी हज़रत हुसैन में और इनके इमाम में कहते हैं दर्जों में कोई फ़र्क नहीं। सुम्मा नाउजुबिल्लाह, ये शख्स कहता है कि बिल्कुल सेम मर्तबा, सेम मंजिलत, सेम मकाम हज़रत हुसैन के साथ अपने इमाम को। ये ब्लास्फेमी पे ब्लास्फेमी करता रहा, बचता रहा, लेकिन अब नहीं बच सका। इस शख्स की जो है वो FIR चित्राल की इस्माइली रीजनल काउंसिल की दरख्वास्त पर साबिर सलीम ऑफिशियल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन ये शख्स जो है वो बड़ा ही ढीठ है। इसने जो है वो बड़ा हंस के एक मजाक उड़ाया है, और वो मजाक जरा सुन लीजिए। ताकि लोग देखें कि आप लोग नाकाम है। मैं तो कराची में बैठा हुआ हूँ, हमने आज तक कभी किसी के ऊपर तशद्दुद की बात नहीं की है। हमने यही कहा है कि जो होगा वो देखा जाएगा। तो असल में अगर आपको FIR काटनी है तो मैं तो कहता हूँ आज ही काटें, ताकि लोग भी देखें कि ये बंदा कराची में बैठा हुआ है, ये सारी बातें दलाइल से कर रहा है, इमाम के लेटर्स दिखा रहा है, फरामीन दिखा रहा है,
इदारों से मुत्तसिल, तो गुंजाइश तो ये होनी चाहिए कि फ़ौरन मेरे ऊपर एक्शन होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा तो आप लोग का मुंह काला हो रहा है। ले जी, तमाम मुसलमानों को, बल्कि अपने ही खाना हिकमत वालों को भी कहता है, यानी वो जो कि दूसरे इस्माइली हैं उनके लिए भी कहता है कि उनका मुंह काला हो गया है। यानी कि वो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको लगता है कि चित्राल में FIR कटी है तो कराची पे कोई भी असर नहीं होने वाला। लेकिन फिर ये शख्स ने अपनी पोस्ट में जो है वो, अब जो फाइनल इसकी कल की पोस्ट थी, लिखता है कि हमने साबका पोस्ट में इमाम असर अलैहिस्सलाम, अब ये इमाम अल असर अलैहिस्सलाम ये कहाँ से लक़ब ला रहा है, कहाँ से घड़ रहा है, और अपने इमाम को ज़माने और असर का मालिक कहता है। ये जुमला ला कहाँ से रहा है? ये जुमला तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने लिए लिखा है कि वो जो कहते हैं कि मैं इस ज़माने को जो है उसका मालिक हूँ और इसकी कसम खाता हूँ और सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला की, ये अपने इमाम के ऊपर कैसे लगा सकता है? कहता है कि हमने इमाम अल असर अलैहिस्सलाम के लिए रहमतुल आलमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जो अहले सुन्नत फ़िरके देवबंदी और शिया कुतुब से माख़ज़ था। यानी कहाँ से माख़ज़ था? कहता है जिन हजरात का दिल दुखा हो उनसे माजरत, बेशक इमाम अल असर अलैहिस्सलाम की आमद मकतबा शिया इमामी इस्माइलिया मुसलमानों के लिए बाइस रहमत है। कुछ अहले सुन्नत फ़िरकों के नज़दीक रहमतुल आलमीन का लक़ब सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास है, जबकि शिया फ़िक्र में इस हवाले से मुख्तलिफ ताबीरात और आरा पाई जाती हैं। आगे से कहता है, यानी कि इसने बड़ा ही कड़वा सा मुँह बनाकर वही हरकत कर डाली और अपने इमाम को दोबारा से अगर रहमतुल आलमीन का जो है वो लक़ब वापस ले लिया, तो अब उसका नाम रहीम अल हुसैनी या रहीम आगा खान के बजाय जी इमाम अल असर ये वो लिख दिया है। तो इस तरह की जो कुत्ते की दुम्में होती हैं वो सीधी नहीं हो सकती हैं, लेकिन क्या करें कि हमने इनको जो है वो बेनकाब भी करना होता है। हमने आपके सामने ये कुछ चीज़ें रखी हैं, एक शख्स पर जितनी कार्रवाई हो सके वो कम करनी है। लेकिन रही बात इसकी और गुस्ताखी की, तो सिर्फ ये लास्ट पोस्ट है और कहता है कि अपने इमाम के लिए पोस्ट बना कर कि हम ही अल्लाह अज़्ज़वजल की किताब यानी सलात यानी नमाज हैं, हम ही ज़कात हैं, हम ही रोज़ा हैं, हम ही हज हैं, हम ही अल्लाह का काबा है और हम ही अल्लाह का चेहरा है। सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। तो इसके बाद जो है वो अब कोई बात करने को बाकी नहीं रही।